friends. Good evening, friends. I am Dr. Liaquat Namole. I am your host for the evening, and it's a great honor for me to introduce my brother, my dear friend, Dr. Manoj Jaiswal. Sir is born and brought up in Siliguri, which is the gateway of Eastern India, and as you all know, Bengal is actually what is it called? It's a place of literature and medicine. So Dada has been connected to homeopathy since his childhood, and Dr. Manoj Da has done his DHMS from Pratap Chandra Homeopathic Medical College and Hospital, Kolkata. It's a very reputed homeopathic medical college, my dear friends. After that, Dada started practicing with many methods like classical and lots of other methods that as usually it is the journey of many of us. And once Dada came in contact with Dr. Abhay Kumar of Bagdora, and he said to Dada that he's doing mind method. So he got little interested. What happened once his son got fever and he was not responding to any medicine. So Dr. Abhay Kumar suggested him to give Hyoscyamus. And with Hyoscyamus, he got fabulous results. And since then, Manoj Da got so charmed with mind method. And since then, he is been very passionate follower and practitioner of mind method. It is almost since 1995 that Dada is practicing mind method. To learn mind method, he used to go daily in the morning, 7 a.m. to 10:30 or 11 a.m. to work with Dr. Abhay Kumar Cheda. Dr. Abhay Kumar to learn mind method. He traveled almost 16 to 20 kilometers daily to learn, and that too so early in the morning to learn. So, and we all know Dr. Manoj Dada is sharing cases every Sunday. So, almost 50 cases a year he takes on our Ignited Minds by PHF group. And he is a very loving. I love him. He knows that. And his cases are wonderful. And he's such a humble person. He is the first practitioner of my life I have seen who shares the case and he writes that कि पहले मैंने बेलाडोना दिया एंड उसके बाद में फिर 4 दिन के बाद में फर्क नहीं पड़ा, फिर मैंने इग्नेशिया दिया, फिर फर्क नहीं पड़ा, फिर मैं सल्फर दिया. ऐसा मतलब ही इज द गाय हु टेल्स कि बाबा मैंने ये दिया, ये सोच के ये दिया था, फिर पेशेंट आया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये देना चाहिए था, फिर पेशेंट आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये देना चाहिए था, देन ही गॉट सक्सेस. So his cases are so simple and so down to earth, such a person that once I remember Dada has shared a case of Salix fragilis, and just few months back, Dada shared a case of Salix fragilis. After that, the patient died after 3 months. So Dada even shared a case where the patient died. Okay, so he's such a humble person, such truth-telling plain is his actually heart. Okay, so without wasting much time, one thing I want to share about Dada is मनोज दा के जी को कोई भी चेंबर नहीं है, उसका एक ही चेंबर है बस. उसके दिल में कोई भी घर नहीं, अननेसेसरी चेंबर्स नहीं है, एक चेंबर वाला दिल है मनोज दादा. तो आज मेरा बहुत सौभाग्य है और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मनोज भाई को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आप लोगों से. ओवर टू यू मनोज भाई. सो फ्रेंड्स, लेट्स क्लैप फॉर दादा. आप अनम्यूट करके प्लीज क्लैप फॉर हिम एंड लेट्स लर्न फैंटास्टिक केसेस फ्रॉम दादा टुडे. ओवर टू यू दादा. अब मैं म्यूट करता हूँ. हाँ भाई. ये का बड़प्पन है. मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप इतना कर रहे हैं होम्योपैथी के लिए. और तो मैं आज का केस अब शुरू करता हूँ, समय वेस्ट नहीं करते हुए. यस दादा. तो आपको और आपकी टीम को जिसने मुझे ये चांस दिया, और प्रणीता ने बहुत कई बार मुझे फोन किया, मेरे को गाइड किया कैसे क्या करना है. एंड थैंक यू प्रणीता फॉर दैट. Thank you, sir. Thank you so much. It's my pleasure. Now starting today's case.
तो ये पहला एक केस, इसमें आज मैं 2 केस बोलूंगा। पहला केस है जिसमें रिमेटेड आर्थराइटिस का। तो ये केस मेरे पास आया था काफी पहले, करीबन 10 इयर्स, 10 साल पहले का केस है ये। तो मेरे पास एक लड़का है जो काफी लंबा चौड़ा तगड़ा भी था और अपनी मम्मी के साथ आया, डार्क कॉम्प्लेक्शन का था। तो उसको बहुत दिनों से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। तो अब उसको जो है नी में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द है और करीब 15 दिनों से दर्द है। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ सभी हिंदी जानने वाले हैं या कोई ऐसा भी जो हिंदी नहीं का जानता है तो मैं इंग्लिश में बोलूँ? नहीं, हिंदी चलेगा दादा, आपको जो कंफर्टेबल वो बोलिए। नहीं, मैं ऐसा कोई और जैसे बाहर का हो तो फिर उसके लिए मुश्किल होगी। हिंदी इज बेटर दादा। ठीक है। तो मैंने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है आपको, पेशेंट से पूछा। तो पेशेंट ने बताया कि मुझे घुटने में बहुत दर्द रहता है और चलने फिरने से दर्द काफी बढ़ जाता है। तो फिर उसने पूछा, अच्छा डॉक्टर, क्या ये आर्थराइटिस है क्या? तो मैंने एक्सप्लेन किया कि हाँ, ये आर्थराइटिस हो सकता है, ऐसे ऐसे भी प्रॉब्लम हो, तो आगे बताओ आप। तो उसने बताया कि फिर उसने पूछा कि अच्छा ये डायग्नोज कैसे होता है कि आर्थराइटिस ही है या और कुछ है, ये ठीक होता है या नहीं होता है। इस तरह से उसने बहुत सारे सवाल क्वेश्चन करने शुरू किए। तो मैंने सबका जो आंसर काफी डिटेल में देना पड़ा मुझे। वो छोटे छोटे आंसर से उसको मैंने सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, तो काफी डिटेल में पूछ रहा था, डिजीज के बारे में, टेस्ट के बारे में, कैसे खाना चाहिए, क्या रहना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, एवरीथिंग काफी डिटेल में पूछा वो। तो फिर मुझे लगा कि बंदा ये इतना पूछ क्यों रहा है। तो मैंने पूछा, आखिर इतनी सब बातें पूछने की जरूरत क्या है तुम्हें, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो उसने बोला कि मेरे नॉलेज में तो सारी चीजें होनी चाहिए ना, मान लो अचानक कोई प्रॉब्लम हो गई, यदि मुझे मालूम रहेगा तो मैं सारा बंदोबस्त कर सकता हूँ। तो मैंने ठीक है। फिर पूछता है कि अच्छा ये हार्ट की ट्रबल भी होती है क्या इसके कारण से? तो मैंने आंसर नहीं दिया, सीधा क्वेश्चन पूछा कि अच्छा तुमने ऐसा पूछा क्यों, सीधे हार्ट में क्यों पहुंचे यहाँ से? तो उसने बोला कि डॉक्टरों ने बताया है कि इसके कारण से हार्ट अफेक्ट हो सकता है, इसीलिए आपसे पूछा। और मैं इसके लिए पेनिड्योर ले रहा हूँ, हर 21 दिनों पर पेनिड्योर का इंजेक्शन ले रहा हूँ, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं है। तो फिर मैंने, अच्छा इसके कारण से कोई डर वगैरह लगता है, किस तरह कोई मन में पैनिक हो रहा है क्या इस बीमारी को लेकर, इतना ज्यादा जो आप पूछ रहे हो, इतना ज्यादा जो क्वेश्चन कर रहे हो? तो बोला कि नहीं, डर वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे हाइट से डर लगता है। और कह के वो जोर से हंसने लगा। ऊंचाई से डर लगता है और मेरे पीठ में और चेस्ट में खुजली की समस्या भी है। तो उसके नेचर के बारे में पूछा, उसकी मम्मी से, नेचर कैसा है, गुस्सा उससे कैसा आता है? तो उसकी मम्मी ने कहा कि बहुत केयरलेस और लेजी है, एकदम आलसी है, कुछ नहीं करना चाहता। और दूसरी बात है, कोई प्रिकॉशन नहीं रखता है। डॉक्टर ने इसको बताया हुआ है कि ठंडी चीजें नहीं खानी है, फिश का आइटम नहीं खाना है, और ये वही खाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स का तो फैन है, कोल्ड ड्रिंक्स जो है बोतल के बोतल पी जाता है। पसीना इसको बहुत ज्यादा आता है, मैंने जनरली से पूछा तो पसीना बहुत ज्यादा, पसीने में गंध आती है उसके। तो एक चीज जो मैंने नोटिस की थ्रू आउट द कन्वर्सेशन, जब कभी वो क्वेश्चन पूछता था कि कैसे क्या है, बीमारी के बारे में हो, टेस्ट के बारे में हो, उसका फेस बहुत सीरियस हो जाता था। लेकिन जैसे ही उसको सारी बातें पता चल जाती थी, वो फिर एकदम नॉर्मल हो जाता। ये कई बार हुआ, जब जब उसने क्वेश्चन किया बहुत सीरियस हो गया, जैसे उसको पता चल गया ही बिकम वेरी नॉर्मल एंड फ्रिवुलस। अब फ्रिवुलस बताया तो आप फ्रिवुलस लेना मत, तो जरूर नहीं कि फ्रिवुलस लगे यहाँ पर।
उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं करना चाहता है, और है क्या वो अकेला इकलौता बच्चा है, तो इसलिए कोई उसे डांटता भी नहीं है। ऑब्वियसली मदर तो उसकी बहुत केयर करती है। उसका एएसओ टाइटल 387 था, तो उसको मैंने 30 पोटेंसी में मेडिसिन दिया, फिर 200 में दिया। ट्रीटमेंट करीब करीब 4-5 महीने ट्रीटमेंट चला, और धीरे धीरे उसकी पेन वगैरह जो है वो करीब 1 महीने में ही खत्म हो गई थी। 3-4 महीने के बाद 2-3 बार मैंने टेस्ट कराया, हर समय एएसओ नेगेटिव आया, और आज भी वो बच्चा आता है और उसको अभी भी वही मेडिसिन लगती है। सर्दी खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो मेडिसिन देने से ठीक हो जाती है। लेकिन डायरिया भी होने से उसको वही मेडिसिन लगती है। तो आज भी उसकी मेडिसिन चेंज नहीं हुई है, और वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। So this is the case. अब आप लोग थोड़ा एनालिसिस बताइए क्या हो सकता है। Yes, participants, you can Sir, मैं बोलूं? tell your analysis. You can unmute and speak. Yes, sir. Hello. हेलो सर। हाँ हेलो Hello, sir. हेलो। हाँ सर, मैं बोलूँ क्या? आप बोलिए, हाँ। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर, मुझे ये इसमें ये लाइट डिजायर वाला लगता है, इंक्विजिटिव लगता है ज्यादा, हाँ हाँ और उसको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एक रूब्रिक लग रहा है मुझे, वो ज्यादा इंक्वायरी कर रहा है तो। ज्यादा इंक्वायरी कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एंड लाइट डिजायर। और फियर उसको जो है हाइट की, ये 5-6 रूब्रिक लग रहे सर मेरे को। लाइट डिजायर एंड फियर हाइट ऑफ हाइट प्लेस। या इंक्विजिटिव लाइट डिजायर पर एंजाइटी डार्क एक आ सकता है सर। एंजाइटी डार्क इज यस, यस। अच्छा रूप है। एंजाइटी डार्क एंड लाइट डिजायर। यस तो इसमें तो बहुत सारी मेडिसिन आ रही हैं। सर, मेडिसिन का नहीं सोचा सर मैंने, फिलहाल रूब्रिक का ही सोचा। तो ठीक है, और क्या ना, और क्या इसके बारे में क्या लग रहा है? और इसको सर अफेक्टेशन में भी लगा, डरा हुआ है अंदर से, पर बोल रहा है कि नहीं मैं डरता नहीं हूँ, उससे कुछ टेंशन नहीं है। अच्छा, एक बार पेशेंट का तो कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद है, आइसक्रीम बहुत पसंद है, और वो मतलब कोल्ड ड्रिंक्स मैंने उसको पर डे 4-5 बोतल, वो भी फ्रिज का एकदम ठंडा, जबकि डॉक्टर ने बताया हुआ उसको कि हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, जॉइंट्स का दर्द बढ़ सकता है, इसके बावजूद वो केयरलेस है इस मामले में। फ्यूलस लग रहा है। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। हाँ, तो डर ही नहीं है बिल्कुल। हेलो हेलो सर। हेलो, मुझे वो क्यूरियस लगा, कम्युनिकेटिव और रिएश्योर इजीली। आपने उसको एक्सप्लेनेशन दिया कि बाद में रिलैक्स होता था जल्दी। हाँ रिएश्योर इजीली, क्यूरियस, कम्युनिकेटिव, ऐसा करके मुझे फास्फोरस लग रहा है। फास्फोरस लग रही है, बहुत अच्छा, फास्फोरस बहुत अच्छा, फास्फोरस ऐसा कर सकता है। वेरी फ्रेंडली विद द डॉक्टर। हेलो सर, कैलकुलेट का लग रहा है कि लेजी पर्सन, प्रोफिस पर्सपिरेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफिस पर्सपिरेशन और लेजी पर्सन है, काम करना नहीं चाहता है, और उसको कोडिंग भी पसंद है। कैलकुलेट का लग रहा है सर। कैलकेरिया कार्ड लग रहा है, वेरी गुड। और इसके पेशेंट को थोड़ा समझने की कोशिश करें ना। सर मुझे लगा कि ये पर्सन बहुत फियरफुल है। हेलो सर।
हाँ हेलो। हाँ, मुझे लगा कि ये पर्सन फियरफुल भी है और फ्रिवुलस जैसा भी है, जैसे वो हेल्थ को लेके एंशियस है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और एक साइड में तो वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ज्यादा पीता है, जैसे उसको कुछ वो ये नहीं है उसकी। तो दोनों थोड़े एक्सट्रीम जैसे, और जैसे क्यूरियस और इंक्विसिटिव टाइप की बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसको वो एंजाइटी है, इसलिए वो पूछता भी है और रीअश्योर भी ठीक से इमीडिएटली हो रहा है, ऐसे लगा सर। लाइट डिजायर में भी है, तो रेमेडी का फील एग्जैक्टली नहीं, कलकेरिया टाइप का रेमेडी लग रहा है सर। लेकिन ओवरऑल पेशेंट का ऐसे फील लगा। यस, कल अभी बहुत क्लोज जा रही है, बहुत सही। हेलो सर, हायोस जैसा भी फील आया, लेकिन हायोस का पर्सन इतना मीन्स केयरलेसली वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकता है क्या, ये थोड़ा क्वेरी था, इसीलिए नहीं आया बाद में। लेकिन उसका बिगिनिंग जो था तो वो थोड़ा हायोस जैसे फील आने लगा था। बिल्कुल हाँ। हाँ सर। हायोस भी बहुत क्लोज था, फास्फोरस बहुत ज्यादा क्लोज था इस केस में। तो फास्फोरस से मैंने जो फास्फोरस, इसलिए कि फास्फोरस इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो डॉक्टर की नॉलेज लेने की कोशिश करता है कि डॉक्टर को कितना आइडिया है, डॉक्टर पढ़ा लिखा है कि नहीं, ये जानने की कोशिश जरूर करता है। ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन वांट टू नो, लेकिन इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्यों कर रहा है, ये थोड़ा समझने की बात है। सर हेलो सर, व्हाई वांट सो मच इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ी बात थी कि उसके जो एक्सप्रेशन बदल जा रहे थे जब वो क्वेश्चन पूछा था, तो ही बिकम वेरी सीरियस, और जैसे क्वेश्चन का आंसर मिल गया ही बिकम लाइक फ्रिवुलस। मस्त एस्टेमोनियम है सर। सर मुझे ये पेशेंट ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके पास आया तो कंफर्म हुआ कि हाँ मुझे ऐसे मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो लाइट हो जा रहा है, लेकिन घर में तो पूरा फिबुलस है, जैसे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई डॉक्टर क्या बोले या फिर घर में किस चीज को मना कर रहे हैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। घर में ऐसा हाँ, लेकिन अंदर वो फियर है, वो आपसे क्लियर कर रहा है कि ऐसे इस वजह से तो नहीं हो रहा। तो अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एकदम लाइट हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एकोनाइट एंड बेल के अंदर रह रहा है सर। एकोनाइट एकोनाइट कर वो जैसे उसको मालूम पड़ता है, बिकम कोई सीरियसनेस खत्म हो जाती है। वेरी नाइस। और किसी को कुछ बोलना है सर? सर इसमें दो चीज आ सकती हैं, एक तो ये क्यूरोसिटी तो क्लियर दिख रहा है, क्यूरियस है। हाँ जी सर, एंड लेजीनेस इज देयर सिंस उसकी मदर बता ही रही है डे टू डे बेसिस पे। सर हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं अबाउट हिज दिस केयर फ्री नेचर, सर टू रूब्रिक्स आर गोइंग इन माय माइंड, वन इज डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, और एक होता है हीडलेस। हीडलेस, यस, हीडलेस बड़ा रूब्रिक है। यस चेक इसमें मेडिसिन है कि नहीं। हीडलेस में मेडिसिन है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से होनी चाहिए। सर व्हाट आई फील, सर मेरे चार्ट में इसमें मेडोराइनम दिखा रहा है। मेडोराइनम आ रही है। क्या क्या रूब्रिक्स लिया आपने? सर क्यूरियस, fear high places of danger, no sense of danger, and laziness. नहीं सर, नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा। 10 मिनट। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ नेक्स्ट। और सैडनेस अल्टरनेट विद चेयरफुल। हेलो, हाँ सर, सैडनेस अल्टरनेट विद हैप्पीनेस। आपको क्वेश्चन पूछता था तब भी वो सैड हो जाता था, लेकिन आप बताते थे तो वो चेयरफुल हो जाता था। व्हाट इज द रूब्रिक?
sadness alternate with cheerfulness. Sadness. No, that was not sad expression. Expression was not sad. हाँ Sir, anxious expression there, sir. Anxiety. Anxiety followed by indifference. Hello. हाँ, hello. Yes. हाँ sir. Anxiety followed by indifference. Anxiety followed by indifference. जैसे वो reassure होता है तो indifference में जाता है. We can. He's asking question very anxiously and. Yes, it has phosphorus also, aconite also. हाँ जी, phosphorus and aconite. Very close. Yes sir. Phosphorus ज्यादा करके आ रहा है. हाँ, phosphorus इस केस में बहुत क्लोज था. शिप ड्राइविंग नहीं है ना सर? हेलो, शिप ड्राइविंग. फॉस्फोरस में क्या है ना, फियर ऑफ इंजरी नहीं है, और इसमें इंजरी का डर तो है, ये पक्का है ना? इस केस में फियर इंजरी बहुत ज्यादा है. Yes sir, right sir. तो इसको हम लोग नहीं छोड़ सकते. लेकिन बड़ा पेक्यूलियर कॉम्बिनेशन है. एक और फियर इंजरी भी है और दूसरी और वो मस्त भी है. मैंने कोई प्रिकॉशन नहीं रखता है खाने पीने में. These are very peculiar combination. ठीक है, तो समझते हैं आगे. एक केस और बोलता हूं मैं. Same medicine has been in that case also. तो फिर आप लोग दोनों को मिला के देखें कोई मेडिसिन तक पहुंच पाते हैं कि नहीं. कैलकेरिया फॉस. कैलकेरिया फॉस, हाँ बताइए कैसे. सर मुझे तो मतलब कैलकेरिया और फॉस्फोरस दोनों को सिम्टम दिख रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं. इंक्विजिटिव है, फेयर ऑफ डिसीज मतलब फेयर ऑफ इंजुरी है, फेयर हाई, लेजी है, फ्रेवुलस है, और जनरलिटी में डिजायर, कोल्ड, पर्सपिरेशन, एंजाइटी, डार्क. हियर हाई प्लेसेस ऑफ. ठीक है, अब एक दूसरा केस मैं और बोल रहा हूं मैं. उसके बाद फिर एक बार एनालिसिस में आएंगे हम लोग. दिस इज ऑल्सो केस ऑफ नोड्यूल्स ऑन द नेक. इससे गर्दन में यहाँ पर एक छोटी सी गांठ हो गई है, और ये भी बंदा जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन का है और तगड़ा, थोड़े से घुंघरूले करले से बाल हैं. तो वो अपने डैड के साथ आया. पहला वाला अपनी माँ के साथ आया था, ये अपने पिताजी के साथ आया, और उसने एक ब्लू कलर की चेक शर्ट पहन रखी थी, और उसके 3 बटन जो है ना ऐसे खुले हुए थे इस तरह से. तो उसके पिता ने आने के साथ वो चुपचाप बैठा हुआ. उसके पिता ने शुरू किया बोलना कि यह ट्यूमर है, यह ठीक होगा क्या. तो मैंने कहा हो सकता है, तो गारंटी है क्या. यह तो ठीक होकर फिर से हो जाता है. मैंने उससे ट्रीटमेंट कहीं कराया है, वहां हुआ और फिर से हो गया. तो मैंने भी गारंटी देने से मना कर दिया. मैं गारंटी में नहीं दे सकता. कोई भी बीमारी कभी भी हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है. हाँ, लेकिन ठीक हो सकता है, मैं ये बोल सकता हूँ. और उसके बाद उसके पिता को समझाने में मेरे को करीब 10 मिनट लगे. उनके पिता के साथ 10 मिनट की गॉसिप हुई. इस बीच पेशेंट जो है वो चुपचाप बैठा हुआ सुन रहा था यूं, एंड इज हियरिंग ऑल दिस थिंग्स समटाइम्स. बस ये उसके एक्सप्रेशन थे. चुपचाप सुन रहा है और थोड़ा इधर उधर देख रहा है. तो अब मैंने फिर टॉपिक को चेंज किया. डायरेक्ट पेशेंट से पूछा कि बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है. तो पेशेंट ने बताया ये गर्दन में देखिए क्या हो रखा है. ऐसे गर्दन में देखिए क्या हो रखा है. तो वहां मैंने देखा कुछ नोड्यूल. एक नोड्यूल था बड़ा सा, इतना छोटा सा, स्क्रीन से लगा हुआ, और कुछ वर्ड्स थे. फिर फादर ने इंटरवेन किया. तो उसके साथ फिर थोड़ी बहुत गॉसिप्स हुई बीमारी को लेके, उसके टेंशन को. उसके पिताजी बहुत टेंशन में थे. तो फिर मैंने उसको इंटरप्ट किया कि ठीक है,
तो फिर मैंने पेशेंट से पूछा कि आप बताओ। तो पेशेंट ने बोला कि अच्छा, यह जो है मेरे एक रिलेटिव को भी हुआ था। चलो ठीक है, और क्या दिक्कत है, और क्या प्रॉब्लम है? तो उसने फिर पूछा कि गर्दन के पीछे होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैंने शुरू के करना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले 3 दिन पहले मैंने नोटिस किया, हुआ ये कि इसमें दर्द हुआ, तो मैंने ऐसे हाथ लगाया तो देखा यहाँ एक गांठ सा है। तो मेरे को काफी चिंता हुई कि कहीं बड़ा कुछ ना हो जाए। तो बड़ा कुछ मतलब क्या? वही जो आजकल होता है। तो क्या होता है आप तो जानते हैं, होता है सब, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं छोटी सी चीजों से। ठीक है, फिर मैंने इसके पिताजी से पूछा कि अच्छा इसका नेचर कैसा है, गुस्सा वगैरह कैसा है? तो इसके पिताजी ने कहा बहुत शांत है, नॉर्मली गुस्सा नहीं करता है। तो पेशेंट ने बोला, उसके पिताजी ने कहा शांत है, अच्छे, इसको एक अच्छे कमेंट दिए उसके बारे में। पेशेंट बोल रहा है कि नहीं, कभी कभी गुस्सा आता है, अदरवाइज शांत ही हूं, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो मैंने बोला इसको लेके क्या बहुत टेंशन हो रहा है तुम्हें, यहाँ जो हो गया है? तो पेशेंट बोला बस ऐसा लगता है कि कहीं फ्यूचर में कोई बड़ी दिक्कत ना हो जाए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। तो फिर मैंने पूछा कि ये आपको अपने आप लगा या लोगों के कहने के बाद लगा? नॉर्मली क्या होता है ना कि पेशेंट के दिमाग में कुछ नहीं होता, लेकिन लोग तरह तरह की बात डाल देते हैं। तो इसलिए मैंने पूछा कि ये आपको अपने आप आया है दिमाग में, या किसी ने बोला आपको कि बड़ा कुछ हो सकता है? तो बोला कि नहीं, मेरे को किसी ने डाला नहीं, लेकिन हाँ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बड़ा कुछ हो सकता है। और जानते हैं आजकल तो होता है ऐसा। तो क्यों ऐसा लगा? इतनी छोटी सी तो गांठ है और आप इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हो। एक बार में आप बड़ी बीमारी तक पहुंच गए, कैंसर ही सोच रहे हो ना? तो हाँ, उसने हाथ में बोला है कि हाँ कैंसर ही सोच रहा। तो इतनी बड़ी बात एक बार में क्यों सोची? तो पेशेंट है ना कि क्योंकि गांठ से बहुत कुछ हो जाता है ना, सुना है मैंने कि गांठ से बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो मैंने, आपने खाली सुना है या देखा भी है कभी? तो पेशेंट नहीं नहीं सुना है, देखा तो नहीं कभी ऐसा होते हुए, लेकिन हाँ सुना है कि गांठ से प्रॉब्लम होती है। और ये भी तो मुझे तब पता चला जब ये दर्द हुआ, दर्द नहीं होता तो पता भी नहीं चलता। ठीक है, और कोई दिक्कत? बोला कि नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज द केस। इसी का एक दूसरा पार्ट भी है, ये इसको दवाई दिया था मैंने, ये ठीक हो गया। तो इस ट्रीटमेंट के दौरान ही उसको बुखार भी आया था, बहुत ज्यादा बुखार आया, और फिशर की भी प्रॉब्लम हुई 2 बार। एक बार बुखार आया तो बुखार में उसको चुपचाप पड़े रहने का मन कर रहा था, एकदम चुपचाप जैसे पड़े रहे, और आवाज वगैरह अच्छी नहीं लग रही थी। उस समय भी मैंने इसी दवाई को दिया, उससे ठीक हो गया वो। और उसके बाद, उस दवा के बाद से नोड्यूल जो है वो भी ऑलमोस्ट ठीक हो गया। फिर करीब काफी दिनों के बाद उसको फिशर की प्रॉब्लम हो गई। तो आपके बताया कि फिशर हो गया है, साइड से कट सा हो गया है। कट होने से ही तो प्रॉब्लम होती है ना। तो मैंने बोला कि आपको कैसे मालूम कि कट हो गया है? तो उसने बोला कि कैमरे से देखा था। मैंने कैमरे से कैसे देखा? बोले कि मोबाइल में कैमरा ऑन करके देखा कि मैंने कैसा है। मैंने फोटो खींचा? बोले फोटो नहीं खींचा। हो सकता है खींचा भी हो, मुझे दिखाया नहीं, मे भी। तो देख लेने से क्या है कि मालूम पड़ जाता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है। एनल के रास्ते में कट दिखाई पड़ रहा था, 1 महीने से ये प्रॉब्लम हो रहा है। होने के साथ ही एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया। तो देखो, इसके पहले वो मेरे पास इलाज कराया था, ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मेरे पास नहीं आया। वो सीधा एलोपैथ में, वो भी एलोपैथ में स्पेशलिस्ट के पास गया वो। यस, लाइट डिजायर पक्का है, इसमें भी लाइट डिजायर लिखा है, बहुत सही है। तो
एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया, उसने एक दवाई दी लेकिन कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उनकी दवाई से थोड़ा काम होता है, फिर वैसा ही हो जाता है, ज्यादा देर आराम नहीं रहता। मतलब ठीक है, इस बार आपके पास आया हूं क्योंकि आराम होकर भी फिर आराम नहीं मिल रहा है। थोड़ी पहले तो आराम मिला, अब वो दवाई भी काम नहीं कर रही है, तो अब तकलीफ ज्यादा हो गई। हमको तो लगता है बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, यह ठीक हो जाता है ना। फिर से उसने पूछा कि ठीक हो जाता है ना, तो मैंने बोला कि हाँ हो तो जाता है। तो फिर उसने पूछा इससे पाइल्स भी होता है क्या? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें दर्द बहुत हो रहा है, शायद दीपावली में कुछ अगड़म मगड़म खा लिया था, उसके बाद से ये दर्द हो रहा है। तो मैंने फिर उसको 200 पावर में वो दवाई दी, 4 डोज दिया, रोज एक बार लेने के लिए, और पैसे दे दिया, और उसी में उसके कंप्लेन जो है कंप्लीट हो गई, ठीक हो गया। तो दिस वाज द सेकंड केस। इस केस में 3 पड़ाव हैं, तीनों में मेडिसिन एक ही दी गई है। अब आप लोग दोनों केस की कड़ियों को जोड़ के देखिए क्या कॉमन है और क्या मेडिसिन आ सकती है। अभी तक कोई भी रेमेडी तक नहीं पहुंचा है। अब आप लोग एनालिसिस बताइए, फिर मैं डिस्क्लोज करता हूँ। स्ट्रेमोनियम है। स्ट्रेमोनियम बहुत करीब जा सकता है। रीजन आपका स्ट्रेमोनियम क्या? जी मैम। जी सर। हाँ, स्ट्रेमोनियम कैसे? जैसे कि वो जब तक उसको लाइट मिल जा रहा है, उसका फियर चला जा रहा है, लेकिन फियर इंजुरी, वो जो एफेक्सेशन, वो जो डर बैठा हुआ है, तो वो जब तक लाइट उसको मिल जा रहा है, वो पूरा हल्का होके उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो लाइट मिल जाने के बाद उसका डर निकल जाता है। हाँ। और सर लेकिन मुझको ये हो गया क्या, वो हो गया क्या, वो जो बार बार पूछ रहा है, एंजाइटी ग्रुपिंग इन डार्क। अच्छा, एंजाइटी ग्रुपिंग इन द डार्क। नहीं, उसने वैसा नहीं पूछा कि ये हो गया क्या हो गया, उसने पर्टिकुलर नाम लेके पूछा किंतु, यानी ऑलरेडी उसको मालूम है। सबसे बड़ी बात है ना, पहले केस में जो पहला केस था, उसमें जो क्या कर रहा था, उसे मालूम सब है, लेकिन मेरे से फिर भी पूछ रहा है कंफर्म करने के लिए कि पहले का डॉक्टर ने सही बताया कि नहीं, या मेरे को सही तरह से आता है कि नहीं, इसलिए वो फास्फोरस के बहुत करीब जा रहा था। इस केस में भी ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि पाइल्स की प्रॉब्लम होती है क्या। उसमें भी गार्ड से सीधे पूछ रहा है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम यानी कैंसर वैंसर हो सकता है क्या। तो इधर उधर नहीं हिल रहा, जहां पर क्या है कि या तो कैंसर हो सकता है, कि पता नहीं ये हो सकता है, पता नहीं वो भी हो सकता है, तो ड्रॉपिंग है। यहाँ ड्रॉपिंग में सीधे कंफर्मेटरी क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधे पूछ रहा है, ठीक है, तो ड्रॉपिंग नहीं है ये। ओके सर। और सर जलसेमियम। हेलो सर। हाँ हेलो सर ये कैलकेरिया कहाँ भी लग रहा है मुझे तो, क्योंकि इसमें लाइट डिजायर काफी ज्यादा है और डिलीरियम लाइट डिजायर, और जैसे वो कह रहा है कि सुना है मैंने कि ऐसा तो नहीं होता जैसे हॉरिबल स्टोरीज, जो रूब्रिक है हॉरिबल थिंग्स एंड सैड स्टोरीज। यस यस, बहुत सही। कैलकेरिया मैंने दिया नहीं है इसको, लेकिन कैलकेरिया बहुत ज्यादा करीब था। डिलीरियम लाइट डिजायर इस केस में बहुत करीब चल रहा है, इसको कैसे अलग करेंगे ये मेरे लिए भी एक क्वेश्चन था। दूसरी चीजें जो थी वो कैलकेरिया को मैच नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने से बाहर निकला। अदरवाइज यदि मुझे ये मेडिसिन पता नहीं होती तो मैं भी कैलकेरिया ही जाता। ओके सर इसमें एफेक्टेशन है, वो क्लियर आके ऐसे नहीं पूछ रहा था कि सर कैंसर तो नहीं है, मतलब आप समझ लीजिए आजकल बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है इस तरह से, वो पुटिंग इट इनडायरेक्टली। सर काइंड ऑफ अफेक्टेशन है ये। हाँ, एंजाइटी बहुत डर तो रहा है वो। एंड सर फियर कैंसर है, सीधा बोल रहा है ये, एंड लाइट डिजायर है। सर रूटा हो सकता है ये, इतना एंग्शियस स्टेट में है। यस रूटा अब बहुत करीब है। जिस रूब्रिक को लेके मैं इसमें एंटर किया था उस केस के एक रूब्रिक
क्या बहुत आप रूब्रिक बताइए, रूब्रिक आप यदि बताएंगे तो बहुत क्लोज चले जाएंगे उस मेडिसिन के। सर अफेक्टेशन, लाइट डिजायर एंड फियर कैंसर ऑफ 2 मेडिसिन आ रही है सर, नाट्रोम्यूर एंड रूटा। अफेक्टेशन लिया आपने ना, अफेक्टेशन क्यों लिया? सर वो सीधा बता नहीं रहा है ना सर, इनडायरेक्टली बोल रहा है अपनी, मतलब वो अपना सीधा डर जाहिर नहीं कर रहा है, थोड़ा सा घुमा के बात कर रहा है। वो दिखाने की कोशिश करता है, मुझे तो डर नहीं लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे लगी नहीं, जैसे कोई गया साइकिल से गिर गया, चोट लगी, उसको लेके आराम से खड़ा हो गया, तो सामने कोई खड़ा था, लोग हंसेंगे, तो ऐसे दिखा रहा है कि मुझे तो लगा है, दिस इज अफेक्टेशन। अच्छा, ये तो आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को तो थोड़ा डर तो है, एंजाइटी तो है, ये हो सकता है, चांसेस तो हैं इसके। ये कभी नहीं उसने बताया, ये दोनों केस में ये नहीं जताया उसने कि नहीं मेरे को कोई टेंशन नहीं है, टेंशन क्या होना है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तो ये अफेक्टेशन हो सकता है। क्लियर? ओके सर। सर हेलो, हाँ बोलिए। सर मुझे भी ये रूटा लगा एंड मेरे रूब्रिक का सिलेक्शन सर फियर कैंसर ऑफ, फियर डिजीज impending of impending and light desire for and mind noise aversion to, mind quite wants to be, quite wants to be। एक बार सभी जितने जितने आपने रूब्रिक बताया ना, एक बार लिख के भेजिए सर। ओके सर। फियर कैंसर ऑफ, क्वाइट वांट टू बी, लाइट डिजायर, ये 3 मेरे समझ में आया, बाकी और क्या था? एक मिनट सर। फियर कैंसर ऑफ, फियर डिजीज ऑफ impending, फियर डिजीज ऑफ impending, वेरी नाइस। and mind light desire for, yes, mind noise aversion to, pardon, mind quite, mind noise aversion to, noise aversion to, अच्छा noise aversion to, yes, and mind quite wants to be, quite wants to be, yes, quite want to be पक्का है। सर इसमें रूटा आई है मेडिसिन। ठीक है, रूटा इस केस में ये भी बहुत करीब जा रही है, थोड़ा सा ना अखड़ होता है। हेलो सर। हाँ हेलो। हेलो सर, हाँ मेरे इसमें ना मैंने क्यूरियस, फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, लेजीनेस, लाइट डिजायर फॉर सनलाइट टू बी इन, इसमें लेंगे ना, और तो चॉकलेट आ रहा है। क्या आ रहा है? चॉकलेट आ रहा है, चॉकलेट। क्या क्या मिला है आपने? क्यूरियस, क्यूरियस, यस, फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, हाँ, लेजीनेस, लेजीनेस, लाइट डिजायर फॉर सनलाइट टू बी इन, और जनरल में आपने क्या बोले? आपने लाइट दिया बेटा, लाइट डिजायर फॉर सनलाइट टू बी इन, क्या सनलाइट कहाँ? मतलब उसको जब हम लोग बोल रहे हैं ना, तो मतलब आराम लगेगा करके उसको चाहिए ना, ऐसा एश्योरेंस जैसा, मतलब जो भी हम लोग लाइट दे रहे हैं उससे वो आराम लग रहा है उसको। अच्छा, ये लाइट डिजायर सनलाइट किस केस में बता रहे हैं, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में? मतलब दूसरे वाले में सर। सनलाइट कैसे? कैनबिस इंडिका है क्या? हेलो सर। सनलाइट कैसे? सनलाइट कैसे? सनलाइट कैसे लेते हैं? सनलाइट, हाउ डू यू टेक सनलाइट? सन में बैठ के। सन मतलब क्या है? व्हाट इज सन में सब क्लियर दिखता है। और सूरज क्या है? लेकिन सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी, पावर, लाइट मिलता है,
जब हमको लाइट मिलता है तो पूरा क्लियर कट दिखता है। सोर्स ऑफ लाइट। नहीं, शाम को सूरज की लाइट होती तो सब क्लियर कहाँ दिखता है? शाम में जब सूरज की लाइट होती तो कहाँ क्लियर दिखता है? सिर्फ दोपहर में क्लियर दिखता है। सूरज मतलब सोर्स ऑफ लाइट, मतलब इफ द पेशेंट इज गोइंग टू द सुपर स्पेशलिस्ट, ओके, हाँ हाँ समझ गए ना? अगर उसको कैंसर का डर है तो वो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाके पूछेगा। दैट इज लाइट डिजायर फॉर सनलाइट, मतलब सोर्स वहां से ले लो। Are you getting me? He will not come to homeopath to ask the diagnosis. Okay, it is very simple. दादा आप लीजिए। हाँ सर ये कैनबिस इंडिका, कैनबिस इंडिका, कैनबिस इंडिका तो बहुत ज्यादा बोल्ड। हाँ बताइए कैसे कैनबिस इंडिका आपके कैसे है, बताइए। सर लाइट डिजायर, क्यूरियस, fear disease impending of, fear disease impending of, and curious, हाँ, fear injure being injured and quite wants to be में, इतना में कैनबिस इंडिका है। quite wants to be, yes, quite wants to कैसे लिया आपने? क्वाइट उसके जो मन में जो भी चल रहा है ना सारे को वो चुप कराना चाह रहा है, मतलब वो बस शांत होना चाह रहा है खुद, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर ले। चलिए अब डिस्क्लोज। अच्छा और किसी को कुछ बोलना है? दादा ये नया एंगल बता रहे ना बच्चे लोग, मतलब मन को शांत, मन के सवालों को शांत करने को क्वाइट वांट्स टू बी लेते हैं लोग। ये नया एंगल मिल रहा है। बहुत बढ़िया। नहीं ये नया एंगल बता रहे सब लोग, क्वाइट वांट्स टू बी। बहुत सारे एंगल हो सकते हैं और हम लोगों के ये इस तरह में एक सबसे बड़ा फायदा है कि हमें बहुत सारे एंगल एक साथ सीखने को मिलते हैं। दिस डिस्कशन। अब लोग आगे। हेलो सर। हाँ हेलो सर मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। सर मैंने फर्स्ट केस तो नहीं सुना, सॉरी मैं लेट ज्वाइन होगी। सेकंड केस का मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि पेशेंट थोड़ा इनडिफरेंस में लगा सर। उसके फादर उसको लेके आए, उसको कुछ पड़ी नहीं है, उसके फादर उसके कंप्लेंट बता रहे हैं, वो इधर उधर देख रहा है। हाँ तो इंडिफरेंस लगा उसका कि डिसीज के लिए, और उसको फियर ऑफ डिसीज से भी मुझे एक्स्ट्रा वैगन्स लगा कि कहीं बढ़ ना जाए, बढ़ के कैंसर ना हो जाए। ऐसे लाइट डिजायर भी उसका है बट वो कुछ ज्यादा ही है, ऐसे कैमरा में शूट करके कौन देखता है ना, इतने सारे पेशेंट आते अपने पास। तो कैमरा में बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। हाँ तो ये डेलीरियम लगा क्या? यस सर। ये सेम थॉट मेरे मन में भी आया था कि कैमरे में शूट करके कौन देखता है, ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा मुझे स्ट्राइकिंग लगा ये, और इसलिए मुझे लगा कि ये ग्रुपिंग है क्या, कि क्या है अंदर, कैसे हुआ है, देखने की कोशिश कर रहा है क्या। तो मुझे ओपिनियन भी लगा सर, थोड़ा एक्स्ट्रा वैगन्स लेके। बहुत अच्छी पकड़ी है। बस इसी फील को यदि रूब्रिक में कन्वर्ट कर दें तो यहीं से मेडिसिन क्लियर हो जाएगी। So that I'm not getting for rubric for that sir. ठीक है, वो हो सकता है। Thank you sir. तो अब ओपन करें, 15 मिनट बाकी है। Yes sir. Yes sir. तो सबसे पहले डॉक्टर अनीता जिन्होंने चॉकलेट बताया था, डॉक्टर अनीता ना? हाँ सर। तो उनके लिए सभी तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया, उन्होंने स्वरल रूब्रिक बहुत सही लिए हैं। एंड दिस वाज रियली लाइट डिजायर फॉर सनलाइट। सनलाइट में जो है ना, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है क्या है ना, कि सनलाइट क्या होता है कि जो सबसे पावरफुल है उसके पास जाना, एग्जैक्टली, या फिर सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से लेना, वो भी एक सनलाइट है। थोड़ा इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जब हम डरे होते हैं। सपोज किसी में कोर्ट केस हो गया
अब नया नया अब अगला फंसा है तो क्या होता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन कई बार जाता है, कई वकीलों के पास जाता है, कई लोगों के पास जाता है। कोई बड़ी बीमारी हो गई, एक डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसे लगता है कि पता नहीं यहाँ ठीक से पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा और अच्छी जगह से लेने की कोशिश करेगा जो सिर्फ टॉप में है, तो छोटे मोटे में नहीं जाएगा। यहाँ इसलिए हमें हाउस की फील्ड आ रही थी ना, किसी डॉक्टर ने बताया था हाउस की फील्ड आ रही थी, इसलिए हाउस की फील्ड भी आ रही थी। तो उसे बिट्रेड का डर लग रहा है, ऐसा लगता है। तो दिस वाज वेरी नाइस। ये चॉकलेट ही है, दोनों केसेस चॉकलेट के। पहले केसेस में जो रूब्रिक मैंने लिए थे, पहला जो केस था आर्थराइटिस का जो केस था, उसमें पहला रूब्रिक था लाइट डिजायर टू बी सनलाइट, कि मुझे भी ये लगा कि ये बंदा इतना पूछ क्यों रहा है। अब इसमें क्यूरियस भी आता है, क्यूरियस भी लिया था मैंने, उसमें भी है ये रूब्रिक। एंड फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, ये पक्का था। सबसे बड़ी बात जो है वो जो हमेशा एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था ना, एकदम फ्रिवुलस, फिर सडन जैसे वो क्वेश्चन पूछता तो सीरियस हो जाता था। हमारे पास एक रूब्रिक है, फेस चैप्टर में जाइए, और ये बहुत काम की रूब्रिक है, हम लोग इसे शायद अवॉइड करते हैं। चैप्टर फेज में एक्सप्रेशन रूब्रिक हो गया। खुला? हेलो, तो फेस में रूब्रिक है, इसके जितनी भी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहला रूब्रिक है एब्सेंट। इस रूब्रिक को लेके मैंने कई प्रिस्क्रिप्शन किए हैं, जिसमें जहां एक्सप्रेशन आने चाहिए वहां भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, जहां डर लगना चाहिए लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं है, डर का वो टेंशन का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन में मैंने लिया एक्सप्रेशन, उसमें बहुत सारी मेडिसिन आएंगी। तो इस केस में जो रूब्रिक था, लाइट डिजायर सनलाइट टू बी इन, फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, क्यूरियस एंड अलर्ट। अब अलर्ट क्यों आया यहाँ पर, ये पूछने वाली बात है कि वो जो मैंने पूछा ना, आखिर बात क्या है, कितना सब जानना क्यों चाहते हो तुम बीमारी के बारे में, कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है कि नहीं, कहाँ से क्या होता है, कैसे क्या करना चाहिए, सारी बातें क्यों जानना चाहते हो। तो उसका आंसर था कि ताकि मुझे यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मालूम हो सके मुझे क्या करना है, मैं तुरंत कोई एक्शन ले सकूं, क्विक टू एक्ट। हाँ, तुरंत कोई एक्शन ले सके, ये उसका जवाब था कि मुझे फिर देरी ना हो किसी भी चीज के एक्शन लेने में। और दूसरी ओर क्या है, वो आराम से आइसक्रीम खा रहा है, आराम से कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है। तो इसमें एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सिम्टम्स था। और एक जो उसने और एक रूब्रिक जो आ सकता है वो ट्रुथ टेलिंग प्लेन। एक रूब्रिक देखिए, ट्रुथ टेलिंग प्लेन। ये सेकंड केस में उसके पिताजी ने कहा कि नहीं शांत है, लेकिन उसने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, कभी कभी गुस्सा आता है। अब इतनी अच्छी कॉम्प्लीमेंट करने के बाद अपनी नेगेटिव पॉइंट कौन बताता है, लेकिन उसने पिताजी को रोककर फिर सारी बातें बताई कि नहीं मैंने कभी गुस्सा आता है, पिताजी बोल रहे हैं शांत है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो पहले केस में और एक लिया था लेजीनेस फिजिकल। डॉक्टर अनीता ने भी शायद लेजीनेस रूब्रिक लिया था मोस्ट प्रॉब्ली, और किसने गीता बताया था लेजीनेस नेचर। लेजीनेस फिजिकल एंड लाफिंग इनवॉलंटरी, वो अचानक हंस देना बिना किसी बात के, दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये इनिशियल स्टेज होता था, मैं इसे बेलेडोना दिया होता, स्टार्टिंग होता मेरा ये देखो, उसमें केवल वही पता था कोई हंस दे तो बेलेडोना दे दो। तो दिस वाज चॉकलेट गिवन, इसको 3-4 महीने इलाज चला था और उससे वो कंप्लीट ठीक हो गया था। और फास्फोरस मैंने कि फास्फोरस में फियर इंजरी नहीं है और उसको इतना ज्यादा सनलाइट नहीं चाहिए, वो बल्कि फास्फोरस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन जानने की कोशिश ज्यादा करेगा। एग्जैक्टली। सर फेस एक्सप्रेशन वाला क्या रूब्रिक है? फेस एक्सप्रेशन चेंज। एक्सप्रेशन, उसके बाद देखिए चेंज,
16 आईडी है उसमें मिला। सर मुझे एक क्वेरी है। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे एक क्वेरी है। जैसे पेशेंट अगर पूछ रहा है कि मुझे ऐसे हाँ बहुत एनर्जी जैसे फील होना चाहिए, मराठी में जैसे उत्साह बोलते हैं, जैसे उत्साह नहीं लगता, उत्साह आना चाहिए, तो उसको भी हम लोग लाइट डिजायर फॉर सनलाइट ले सकते हैं क्या? क्योंकि ये जनरल लाइट डिजायर लगता नहीं, जैसे बार बार पेशेंट बोल रहा है जैसे बहुत ऐसे उत्साह लगना चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए, तो वो सनलाइट हो सकता है क्या सर? ये सनलाइट मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि उसका पेशेंट की डिमांड क्या है, उसकी कमी क्या है कि उसको उत्साह नहीं मिला, लाइफ में जो है चार्म खत्म हो गया हाँ हाँ है ना। हाँ लाइफ में उदासी, कहीं भी कोई लाइट नहीं है उसके पास, हाँ मैंने इसलिए जिसके कारण से वो अपने जिंदगी को जीने का मकसद खत्म सा हो गया है ना। हाँ, जब वो लाइफ जैसे रूटीन क्या होगा, लाइफ में जितना बहुत फ्रेश उत्साह लगना चाहिए, एनर्जेटिक लगना चाहिए। एनर्जेटिक लगना चाहिए, तो इसका पूरा कंडीशन है ना वो। हमें कुछ क्यों चाहिए, जब हमारे पास नहीं होता तब हम मांगते हैं। बेसिकली आई थिंक पुअर कंडीशन होनी चाहिए, और इसमें भाई ज्यादा अच्छा रोशनी डाल सकते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस। सर मेरी क्वेरी है, हाँ तो फेस एक्सप्रेशन चेंज में नीचे चेंजिंग भी है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है सर, चेंज कब लेना है और चेंजिंग कब लेना है, अलग अलग रेमेडी। हाँ, चेंजिंग में क्या होता है ना, बहुत फास्ट चेंज होता रहता है, उसमें फिर और एक रुपये देखिए रैपिडली चेंज, वो एस्ट्रामोनियम है। लेकिन इसके साथ क्या होता था, ये हमेशा चेंज नहीं होता था, जब वो क्वेश्चन कर रहा था उस समय चेंज होता था, जैसे उसे क्वेरीज के आंसर मिल गया उसके चेंज एक्सप्रेशन जो है वो ठीक हो जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने एक्सप्रेशन चेंज लिया और चेंजिंग या रैपिडली चेंजिंग में नहीं गया। क्लियर? थैंक यू सर। तो इसका डीडी एगारिकस से हो सकता है क्या? हेलो, He's asking इसका डीडी एगारिकस हो सकता है क्या? और एगारिकस में क्या होता है ना, उसको छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है। यस। और मुझे एक बार एक केस मिला था, पेशेंट ऐसे बोल रहा है कि देखिए डॉक्टर यहाँ पर एक डॉट्स है, तो बड़ा कुछ तो नहीं, वो डॉट्स प्रैक्टिकली मुझे दिख नहीं रहा है। अब पेशेंट बोला तो मैंने हाँ हाँ कुछ है, लगता है वैसा है। तो कम से कम 3-4 बार मेरे पास आया, मेरे मेडिसिन समझ में नहीं आ रही थी, 3-4 बार आने के बाद मुझे लगा कि ये एगारिकस हो सकता है, तो फिर मैंने एगारिकस दिया था उसको, कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रही जो डॉट्स, और उसको पता नहीं दिखाई भी पड़ रहा, उसको लेकर बहुत डरा भी हुआ है, तो वो एगारिकस की फील्ड है। दादा इसमें हीडलेस आपने बोला था, हीडलेस करीब है, और हीडलेस क्यों नहीं लिया आपने? हीडलेस आपने बोला हीडलेस करीब है, तो व्हाई यू डिड नॉट थिंक ऑफ? बाकी जो रुब्रिक्स थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने हीडलेस में गया नहीं, लेकिन लग रहा है ये हीडलेस थोड़ा सा तो उसमें है कि नहीं पता नहीं, एक बार देख लेता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, हीडलेस के साथ में इसके साथ एक बहुत बड़ा जो कैरेक्टर है वो अलर्ट भी है। क्यों अलर्ट है? उसने सारी जानकारी क्यों इकट्ठा कर रखी है, ताकि समय पड़ने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अलर्ट। एग्जैक्टली। तो वहां कुछ नहीं है, लेकिन खाने पीने के मामले में जो है वो आइसक्रीम इतना पसंद है कि उसको रोक नहीं पाता है, तो वहां वो एकदम केयरलेस है, फिर खा पी लेता है। लेकिन यदि कोई तकलीफ हो तो फिर तुरंत वो खाना पीना छोड़ के अपना आ जाएगा अपने लिए पर, तो नहीं अब नहीं खाना है, प्रिकॉशन लेता है, लेकिन जैसे ठीक होता है फिर चालू हो जाता है। एग्जैक्टली। इसमें हम फिबुलस भी ले सकते हैं या और भी कई रुब्रिक्स आते हैं, लेकिन उन रुब्रिक्स में चॉकलेट नहीं है। नहीं फिबुलस नहीं है राम, ये तो मुझे ऐसा लगा बेलाडोना के बहुत करीब जाता है। हाँ, चॉकलेट मतलब बेलाडोना की नेक्स्ट स्टेप, हम लोग ऐसा बोलते हैं, चॉकलेट मतलब नेक्स्ट स्टेप ऑफ बेलाडोना। नेक्स्ट स्टेप ऑफ, हम लोग ऐसे लेते हैं, इफ द पेशेंट इज नॉट बेटर विद बेलाडोना देन यू थिंक ऑफ चॉकलेट, इतना सिंपल, हम लोग उसको ऐसा लेते हैं। सिर्फ फर्क क्या है दादा? हाँ बस,
हीडलेस में क्या होता है ना, हीडलेस में पेशेंट कोई भी चीज को वैल्यू देता नहीं, he doesn't care for anything. ये यहाँ पर क्यूरियस है ना, he wants to know. हीडलेस वाला ये नहीं होता, हीडलेस मतलब कुछ लेना देना नहीं है, जो होगा वो वेरी क्लोज टू इंडिफरेंस. किसी ने बोला था ना, एक्चुअली इसको इंडिफरेंस से ज्यादा मैं डिटैच्ड लेता, आई टेक इट डिटैच्ड. डिटैच्ड है ना ये, मतलब है ही नहीं. पढ़ने पर जब उसके फैमिली से ही उसको जब चोट पहुंचती है तो धीरे धीरे डिटैच हो जाता है, फिर वो अवर्जन टू हस्बैंड में चला जाएगा, अवर्जन टू चिल्ड्रन में चला जाएगा, फिर उसके उन लोगों से है उसके लिए वो हेजाब हो जाएगा. कि तुमने मेरे प्यार का बदला ऐसे दिया, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा. दैट इज अ कंडीशन वेयर चॉकलेट बिकम हेजाब. वो अपने ही बर्बाद, अपने ही संसार को बर्बाद करना शुरू करता है. हेलो सर. हाँ हेलो सर, एक क्वेरी है सर. आपने जो बोला ना वो कैमरा लेके शूट करता है, उसके लिए क्या एंट्री लिया आपने, कौन सा रूब्रिक लिया? मैंने वही रूब्रिक लिया, सनलाइट डिजायर फॉर. इतना क्लियर कौन जानना चाहता है? उसने मोबाइल के कैमरे से फोटो खींच के देखा है उसको. हाँ, टू द पॉइंट जानना है उसको. मेरे लाइफ में पहला ऐसा मिला है. बाकी अभी आते हैं, जैसे लेडीज जो पेशेंट आती हैं आजकल, भाई डॉक्टर को दिखाना नहीं है, थोड़ा प्राइवेट पार्ट्स में, तो कैमरे में फोटो खींच के ले आती. लेकिन यूजुअली दिस वाज वेरी पिकुलियर. तो मैंने वहां पे लाइट डिजायर सनलाइट लिया इसका, जो मेरे समझ में आया. थैंक यू. तो उस केस में जो रूब्रिक मैंने लिया था, और भी कई रूब्रिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में समझने के लिए. उसने क्या किया, जैसे ही उसे मालूम पड़ा वैसे ही वो आया और उसे टेंशन हो गया इसको लेकर कि पता नहीं क्या हो गया. तो हमारे पास अब वो टेंशन क्या है, उसका एंटीसिपेशन है. वो सोच रहा है कि क्या हो रहा है, उसके सोच में है कि बड़ा कुछ हो गया होगा ना. तो एंजाइटी एंटीसिपेशन फ्रॉम मॉर्निंग, एक रूब्रिक देखिए. मॉर्निंग क्या है, स्टार्टिंग फेज. एंजाइटी एंटीसिपेशन फ्रॉम मॉर्निंग पहला रूब्रिक था. सिंगल. दूसरा फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ. और तीसरा रूब्रिक था क्विक टू एक्ट. लाइट डिजायर डेफिनेटली है, एंड एक्साइटमेंट डार्किंग, एंड एक्साइटमेंट एज इफ इन कंफ्यूजन. ये बहुत अच्छा रूब्रिक. ये बहुत अच्छा है. एक्साइटमेंट एज फ्रॉम कंफ्यूजन, ये बहुत अच्छा रूब्रिक है. कंफ्यूजन, पता नहीं क्या हो गया. और बहुत ये अच्छा ड्रॉपिंग बहुत करीब जाती है. और अभी किसी ने बोला ड्रॉपिंग एज इन द डार्क. तो डार्क में क्या होता है ना, तो बिल्कुल ही डार्क होता है, कुछ भी अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा. इसे मालूम है कि यहाँ कुछ तो हुआ है, और इसके लेके उसके एक्साइटमेंट चालू हो गया है कि पता नहीं क्या है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कुछ झमेला तो नहीं हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी. So he's excitedly want to know everything. So this was the rubric, excitement as if in confusion, जैसे कि वो confused हो. और इसको मैंने बोला, जब वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लगा तो मैंने बोला एक काम करो यार, एक FNAC करवा लो तो मालूम पड़ जाएगा. जब दूसरी बार मोटा मोटी ठीक हो गया तब भी बोला. तो जैसे मैंने FNAC का नाम लिया, नहीं FNAC की दरकार नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो आराम है, बाद में देखेंगे, करके वो टाल गया. तो वहां तो उसे फियर इंजरी है कि FNAC कराने जाएंगे, पता नहीं अंदर सुई डाले तो कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए, अभी आराम है, भी रहने दो. वो फियर ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर ज्यादा अच्छा है दादा. यहाँ वो फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज से ज्यादा मेरे को फियर ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर लगा था. फियर ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, फियर डेंजर ऑफ इम्पेंडिंग. अच्छा, फियर डेंजर ऑफ इम्पेंडिंग. यस, मेरे को फियर ऑफ इंजरी दादा, मेरे को फियर इंजरी ये केस में नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों. क्योंकि इंजरी मुझे लगता है बहुत छोटा, इंजरी इज अ स्मॉल थिंग ना. इसको कैंसर का डर लग रहा है ना, जो काफी खतरनाक होता है. हाँ, तो इसीलिए मुझे फियर ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर ज्यादा लग रहा है. बहुत अप्रोप्रिएट. यस, ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है. बिल्कुल सही. और दादा मैं एक चीज सबसे शेयर करना चाहता हूँ, इसका प्रूविंग में मैं था. आई वॉज वन ऑफ द प्रूवर्स ऑफ चॉकलेट. डॉक्टर जेरमी शेर के अंडर हमारा प्रूविंग हुआ था.
And this was in 1994. डॉक्टर जेरमी शेर ने उसका बॉम्बे के अंदर सेमिनार लेकर उसका आया था। डॉक्टर जेरमी शेर ने प्रूविंग किया है इसका। तो इसका जब उन्होंने प्रूविंग रिपोर्ट इंडिया में पेश किया था, तो वी वर देयर इन दैट सेमिनार 1994। हेलो, आपका अच्छा फोन आएगा था। और कोई क्वेरीज है? सर बेल के साथ डीडी थोड़ा बेल के साथ सर स्ट्रेमोनियम के साथ ज्यादा पूछने की कोशिश नहीं, थोड़ा सा लाइट मिल गया काम खत्म है। वो बहुत ज्यादा बर्डन, इतना सारा जानने का बर्डन बेलोडोना बिल्कुल नहीं लेता, इसलिए मैं बेलोडोना से अलग हो गया। नहीं, ये बेलोडोना नहीं है, मुझे भी लगा कि कहीं बेल तो नहीं है, लेकिन बेलोडोना इतना ज्यादा नहीं पूछता है। फिर फास्फोरस आया, फास्फोरस की भी लाइट डिजायर बहुत ज्यादा है। वो सारी चीजों को इसलिए जानना चाहता है कि उसे डॉक्टर कंफर्म करना है कि डॉक्टर सही है कि नहीं। तो यहाँ फास्फोरस अलग हो गया। सर ये एक रूब्रिक बताया आपने, एक्साइटमेंट इन द डार्क, ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। अच्छा, व्हाट इज एक्साइटमेंट, क्या होता है बताइए। सर उत्सुकता या मतलब हाँ ठीक है। मोर एनर्जी। एक्साइटमेंट जो है दो तरह से यूज होता है ना, एक तो जब खुश होते हैं तो भी एक्साइटेड हो जाते हैं, और कभी अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी एक्साइटेड हो जाते हैं, वो डर का एक्साइटमेंट होता है। ठीक है, तो जब डर के कारण से होता है तो हमें पता नहीं होता किस तरह का डर आने वाला है हमारे ऊपर, तो हम एक्साइटेड होकर उसका सोल्यूशन खोजने निकलते हैं। ये बंदा भी सोल्यूशन खोज रहा है कि क्या हो सकता है, सारी चीजों को जानने की कोशिश कर रहा है ताकि हम पहले से तैयार रहें, अचानक कोई मुसीबत आए तो हम उसका सामना कर सकें। तो वो पहले एक्साइटमेंट डार्क में है, उसके बाद डिजायर में जा रहा है। ये केस का सबसे अच्छा एस्पेक्ट यही रहा कि ही वांट्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। जब तकलीफ हो तब मैं क्या करूं, मैं मजे में रहूंगा, लेकिन जब तकलीफ आएगी तो ही विल बी अलर्ट टू डू। दिस इज द मेन थीम ऑफ this is what is differentiating it from Belladonna and opium. He is curious because he wants to know when he is in presence of danger, what will he do. That is chocolate. ये बहुत अच्छा, बहुत मस्त केस था, बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। हम लोग तो चॉकलेट किस में यूज करते हैं, ज्यादातर मैं फीमेल्स में यूज करता हूँ, ऐसी लड़कियों से जिनको बस ऐश करनी है, बस वो उसमें है ना, वो मुझे एक रूब्रिक है ना, डिजायर फॉर फ्लाइंग, एक फ्लाइंग वाला कुछ तो रूब्रिक है चॉकलेट में, दे वांट टू फ्लाई, बस एक सिंगल फ्लाइंग डिजायर फॉर, वो एक रूब्रिक पे हम यूज करते हैं चॉकलेट, उनको बस मजा करना है, ऐश करना है। एक्सक्यूज मी सर, वो जो अटेंडेंट के साथ आए थे उसका कुछ सिग्निफिकेंस है सर? दोनों केसेस में वो रिलेटिव के साथ आए थे, तो उसका कुछ है सिग्निफिकेंस? हेलो सर। हाँ, दोनों केसेस में वो कोई अटेंडेंट के साथ आए थे, तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस है केस में? नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत ज्यादा से कोई ना कोई तो आता है ना, जैसे कोई बीमार पड़ जाए घर वाले, तो हम लोगों में क्या है कि कोई ना कोई साथ में जाता है। यदि कोई अकेला आए तो वो थोड़ा सोचना चाहिए कि अकेला क्यों आया है। नॉर्मली तो होता है ना, कोई ना कोई लेके आता है साथ में। यस। उस केस में माँ ज्यादा केयर करती है, पहले वाले केस में तो माँ लेकर आई थी। दूसरे वाले केस में क्या है कि इसकी जो माँ है उतनी एडवांस नहीं है, बहुत अलग तरह की फैमिली में है, जिसमें जो है औरतें बहुत कम बाहर निकलती, तो उसके पिताजी लेकर आए उसको। लेकिन वो जिस तरह से चुपचाप सुन रहा था, दैट वाज पेक्यूलियर। और सबसे बड़ी बात है वो जब बोला ना कि नहीं, से एकदम शांत लड़का है, उसने तुरंत इंटरप्ट किया कि नहीं, थोड़ा गुस्सा आता है,
तो थोड़ा सा भी जो गलत बोला उसको भी सही किया उसने। तो ये ट्रुथ टेलिंग प्लेन है, एकदम आराम से जो मुझसे मन में है सीधा सीधा बोल दिया कि नहीं नहीं थोड़ा गुस्सा तो आता है। दिस वाज वेरी पेक्यूलियर अगेन। सेंसोरियस क्या है सर? सेंसोरियस नॉट सेंसोरियस, ट्रुथ टेलिंग प्लेन, सच्ची बातें कहना, उसके जो सच है उसने बयां कर दिया। ठीक है। हेलो, जैसे उसने पिताजी के बात, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। जैसे उसके पिताजी बात कर रहे थे। हाँ हाँ सर, जैसे उसके पिताजी बात कर रहे थे तो उसने बीच में बोला, तो ये मेडलसम होगा या ट्रुथ टेलिंग प्लेन था? नहीं, उसके पिताजी ने बीच में टोका, वो पिताजी का सिम्टम है, इसने नहीं टोका। जैसे मैंने पेशेंट से बात की, मुझे लगता है ना बाहर पेशेंट बैठे हुए हैं और उसके पिताजी ऑलरेडी 10 मिनट खा गए थे बीच में ही। तो जैसे पेशेंट से बात करना शुरू कर, फिर उन्होंने बीच में टोका। कई बार क्या होता है ना कि पेशेंट की क्वेरी भी शांत करनी होती है, क्योंकि वो आता है तो बहुत सारी समस्याएं लेकर आता है, तो कई बार उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब डॉक्टर ने सही तरह से अटेंड नहीं किया। तो उसमें हमें टैक्टफुली थोड़ा पेशेंट को अवॉइड करना पड़ता है, उसे खराब भी ना लगे। और अपना और कुछ नहीं था, पेशेंट ने नहीं किया था, पेशेंट को पिताजी नहीं किया। सर उसमें सेकंड केस में आपने गेस्चर करके बताया था कि जब उसके पिताजी से बात चल रही थी आप तो सुन रहा था, अपनी चीन के ऊपर हाथ रख के, अपने चीक के ऊपर हाथ रख के, इसके लिए क्या लिया आपने? कम्युनिकेटिव ले सकते हैं, कम्युनिकेटिव एग्रीफिकेशन में शायद होना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। है दादा, कम्युनिकेटिव में है चॉकलेट। कम्युनिकेटिव होगा वो। कम्युनिकेटिव में क्या होता है ना कि हम अच्छे तरह से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बनाना। सो बेसिकली वो जिस तरह से दिखा रहा था, सारी चीजें अच्छी तरह से बता रहा, दिस इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव। तो हम बोल के भी कर सकते हैं, बिना बोले भी कर सकते हैं। सर इसमें उसके फादर डोमिनेटिंग नेचर के रहेंगे, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा? हेलो पार्डन सर, वो जो एक्शन कर रहा है, उसके फादर जो आपके साथ बात कर रहे हैं, वो टाइम को खाली सुन रहा है, इधर उधर देख रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं ना कि वो फादर डोमिनेटिंग है ज्यादा, घर पे भी वो इधर भी वो बातें बना रहे करके वो ऐसा इधर उधर देख रहा है? हो सकता है, जिसमें फैमिली क्या होता है ना, वो जिस तरह की फैमिली से आया है, उस फैमिली में गार्जियन जो है बहुत प्रमुख होता है। या गार्जियन के ऊपर बच्चे ज्यादा बोलते नहीं है। हाँ, इसको भी रीजन ये हो सकता है। मुझे पिताजी बोल रहे हैं तो मैं क्यों बोलूं, सम्मान की भावना भी रहती है। हाँ। एक चीज और, लेकिन चॉकलेट का एक एस्पेक्ट है सैम, चॉकलेट्स आर वेरी content and confident. What beta? Voice is breaking. My voice is breaking. Chocolate are very confident and they are very contained. Okay. बाकी लोग प्लीज म्यूट करो ना अपना फोन। सैम आप फोन म्यूट करो प्लीज। सर मनोज सर का फोन ऑन रहने दो। हाँ दादा, क्या दादा? हाँ भाई, आपको थोड़ा क्या बता रहे हैं आप? चॉकलेट आर वेरी कंटेंट एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट बंदा, मेरा अपना ये तजुर्बा है, अगर कॉन्फिडेंट और कंटेंट रहा तो दूसरों को बोलने देता है। कॉन्फिडेंट पीपल अलाउ अदर्स टू स्पीक। कॉन्फिडेंट एंड कंटेंट, दे अलाउ अदर्स टू स्पीक। As long as they hear the right thing, they will allow others to speak. Confident वाले बंदे को पता होता है ना कि कुछ भी हो ऐसा। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है ना कि आप में इतना आत्मविश्वास होता है ना कि चलो ठीक है, ये बोल भी रहा है, मुझे जो जानना है मैं बोलूंगा। ओके, कॉन्फिडेंस में इतना, कोई कुछ भी बोले, मुझे जो जानना है मैं बताऊंगा। Is what the confident people are actually.
अब ये पहले वाला भी बंदा जो लेजी था, उसको ही वॉज कॉन्फिडेंट ना कि ये नहीं है, सिर्फ अगर ये बीमारी जब जरूरत आएगी तो मैं हैंडल कर लूंगा, इसलिए ही वॉज लाइक यू नो, जो अपने को फ्रीवलेस लग रहा था ना, तो ही वॉज कंटेंट, जब टाइम आएगा तो मैं इसको हैंडल कर लूंगा, बस मुझे जानना है कि कैसे हैंडल करना है, बस दैट इज कॉन्फिडेंस। व्हेन द टाइम कम्स दे कैन परफॉर्म। यस, इसीलिए वो लोग ऐसे सोचते हैं। अपन किसी पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप परहेज करो, शुगर है, ये है, बट दोज हु आर वेरी कॉन्फिडेंट दे लोग ओके, उनको पता होता है कि कैसे हैंडल करना है। I think Dada, we should finish now. It's 5:10. Manoj bhai? Manoj Dada? हाँ, हेलो। फिनिश करें अभी? हाँ, क्लोज करें। फिनिश करना है अभी, है ना? हाँ। हाँ। So thank you very much, Manoj bhai, Manoj Dada. Thank you very much for sparing time and it's a wonderful remedy, new remedy for many of our attendants. Please hear from you again. ये 100 लेक्चर सीरीज के अंदर कम से कम 10 लेक्चर तो हम रखेंगे इंशाल्लाह। Okay, 10 lectures from Manoj Da in 100 lecture series. Thank you very much, participants, and congratulations to Anita. Anita is one of my very favorite students, Dada, and a very intelligent girl from. I'm very happy, and I always have. I had dreams about Anita. I say कि Anita को मैं बहुत अच्छी जगह पे देखना चाहता हूँ, and she's proving to be right. Thank you, my team. Thank you, Pranita. Thank you, Mansi, and thank you, Priya, Manisha, Vaishali, all my team. Thank you very much, Dada. Thank you. God bless us all. Thank you everyone. Thank you, Liaquat bhai. Thank you, sir. Pranita and all the team. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.